Good morning students, welcome to your English class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. So students, we will start our today's class with our password, that is homophones. So what are homophones? Homophones are words that sound similar but they have different meaning and different spellings as well. So होमोफोन वो शब्द होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे से लगते हैं बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है और उनका जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट होता है. I have written some examples of homophones here. You can see here. First is tail, tail. Beat, beat. Rise, rise. Right, right. So these words, as you can see clearly and you can hear clearly, that they sound similar but they have different meaning and different spelling. So I am going to use these words to frame sentences, then you can clearly know. Tail, tail. The cow has a long tail and this tail is T-A-L-E. This is the tale of a very famous king. ये एक बहुत से मशहूर राजा की स्टोरी है. Beat, B-E-A-T, beat. Beat means whip. So beat the cream well to make it fluffy. क्रीम को अच्छे से बीट करो ताकि वो फ्लफी बन जाए. This B-E-E-T is the name of a vegetable. We should eat, beat regularly. Rise, rise क्या है? उगना या निकलना. The sun rises in the east. The next is rice. Rice मतलब चावल. I like to eat rice. Next is write. Write मतलब लिखना. I write with red pen. The next is R-I-G-H-T. This is also called write. This is my right hand. So you can see clearly students, these words sound similar but they have different meaning and different spellings. So this was about our password homophones. Now what we are going to do in our English class, students, we will do 4 exercises in our English Communicate book or English Reader book on page number 20-21. So let's start with our book work. Yes students, today we will do 4 exercises in our English Communicate book. This is page number 21, as you can see here. I am sure that you have taken out your English Reader book. You are having your English Reader book with you. So this is our classwork. You will mark the changes or note your classwork in the book itself. I will tell you how you have to do it. मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है. So first of all, write classwork here, just like I have written here, and today's date, that is 27th May here. Now we will start our exercise G. What is it all about? I want to tell you. Some words name a special person, place or thing. कुछ शब्द हमें किसी स्पेशल पर्सन के बारे में, स्पेशल प्लेस के बारे में और स्पेशल थिंग के बारे में बताते हैं. These are special names. ये स्पेशल नेम्स होते हैं. You know about special names. These are called proper nouns. कुछ स्पेशल जनरल नहीं, जो स्पेशल के बारे में हमें बताया जाए तो हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं. दे ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. उनकी एक सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. आइदर दे आर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड. चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, मिडल में हो या एंड में हो, बट वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. एग्जाम्पल दिए गए हैं. आलिया एंड असद सॉ द चार मीनार इन हैदराबाद. आलिया और असद ने चार मीनार को देखा हैदराबाद में. आलिया, एज द नेम सजेस्ट, इट कैन बी द नेम ऑफ अ गर्ल. किसी गर्ल का नेम हो सकता है. असद बॉय का नेम हो सकता है. उन्होंने चार मीनार देखा. चार मीनार क्या है? नेम ऑफ द मोन्यूमेंट. मोन्यूमेंट बहुत सारे हैं. मोन्यूमेंट वर्ड के लिए हम कॉमन नाउन उसको बताएंगे, बट जब मोन्यूमेंट का स्पेशल नेम दे दिया गया है, दैट इज़ चार मीनार, तो वो प्रॉपर नाउन है. एंड दिस इज़ हैदराबाद. हैदराबाद क्या है? सिटी है. सिटी का नेम है. अगर सिटी होता तो हम उसको कॉमन नाउन रेफर करते,
बट जब सिटी का नेम दे दिया गया है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. सो हैदराबाद इज प्रॉपर नाउन. सो नाउ यू नो अबाउट स्पेशल नेम्स. आपको पता है स्पेशल नेम के बारे में कि जब हमें स्पेशल नेम दिया जाए किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, तब हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं. एक्सरसाइज जी, अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन दीज सेंटेंसेस. रीराइट द सेंटेंसेस इन योर बुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स. आपको स्पेशल नेम्स को अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस में जो दिए गए हैं. रीराइट द सेंटेंसेस, इसमें दिया गया है कि आप फिर से राइट करें सेंटेंसेस को, उनको ठीक करके. बट वी विल डू दिस एक्सरसाइज इन द बुक इटसेल्फ. सो हम बुक में ही करेंगे इसको. जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ मार्क कर देंगे. सो वी विल स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज किरण लिव्स इन पटना. किरण पटना में रहती है. हेयर यू कैन सी किरण इज द स्पेशल नेम. किरण स्पेशल नेम है बट वो स्मॉल, उसका जो स्टार्टिंग है किरण का के वो स्मॉल है. हमें इसको कैपिटल में लिखना है. लाइक दैट आई हैव रिटन हेयर. किरण का के हमने कैपिटल लिख दिया. अब ये प्रॉपर नाउन हो गया है. एंड पटना, पटना क्या है? नेम ऑफ द सिटी. और ये बिहार का कैपिटल है. सो पटना का भी पी जो फर्स्ट लेटर है मैंने उसको कैपिटल लिखा है. सो नाउ आवर सेंटेंस इज करेक्ट. किरण का के कैपिटल एंड पटना का पी कैपिटल. किरण लिव्स इन पटना. किरण पटना में रहती है. सो इस तरह से आप पहले तो अंडरलाइन करेंगे जो प्रॉपर नाउन वाले वर्ड्स को हैं, उसके बाद उसमें चेंजेस कर देंगे और ऊपर लिख देंगे. नेक्स्ट इज आशा एंड अरुणा आर सिस्टर्स. आशा और अरुणा सिस्टर्स हैं. आशा और अरुणा बहनें हैं. सो हियर यू कैन सी जो नेम है पर्सन के वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट हो रहे हैं. सो हम उनको कैपिटल में लिख देते हैं. दिस इज स्मॉल ए, हमने उसको कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया. और हेयर यहाँ पर भी इसी तरह से किया. स्मॉल ए इज कन्वर्टेड टू कैपिटल ए. सो इसको रिप्लेस किया हमने. तो अब ये अब प्रॉपर नाउन वर्ड नेम हो गया है और अरुणा भी हो गया है. सो आशा एंड अरुणा आर सिस्टर्स. हमने पहले उनको अंडरलाइन करना है एंड देन वी विल राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल. इस तरह से आप ऊपर लिख देंगे. नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 22. Yes students, this is page number 22. We are doing exercise G. So we have completed 2 sentences. उनको हमने ठीक किया था स्पेशल नेम्स को फिर से रीराइट करके. Now this is the third sentence. Pia is reading a book. पिया एक किताब पढ़ रही है. Here you can see कि all are at proper, वो place जो सभी चीज़ें हैं प्रॉपर हैं. बट पिया जो का जो नेम है वो पी स्मॉल है. इट शुड बी इन कैपिटल. वो कैपिटल में होना चाहिए. सो आई हैव रिटन हेयर पी इन कैपिटल और उसके बाद हमने पूरा नेम लिख दिया है और हमने उसको अंडरलाइन भी किया है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन वर्ड्स. हमें पहले अंडरलाइन करना है उनको, उसके बाद हमें उनको रिप्लेस कर देना है, स्टार्ट कर देना है कैपिटल लेटर से. सो पिया इज रीडिंग अ बुक. Now next is पोंगल falls in the month of January. यहाँ प्रॉपर नाउन वर्ड्स क्या हैं? पोंगल एंड जनवरी. पोंगल एक फेस्टिवल है जो साउथ इंडिया में मनाया जाता है और वो कब आता है? जनवरी में. जनवरी भी क्या है? स्पेशल नेम होता है मंथ का. देयर आर 12 मंथ्स अ ईयर. जो उनमें जो मंथ अगर वर्ड हो तो हम उसको कॉमन रेफर करेंगे. बट जब मंथ का स्पेशल नेम दे दिया गया है, वो कोई भी हो सकता है, 12 मंथ्स हैं उनमें से, तो हम उसको कैपिटल में लिखेंगे. हेयर आई हैव रिटन पी कैपिटल. तो उसके साथ ये वर्ड भी कंप्लीट मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हुए पूरा वर्ड फिर से लिखा है. पोंगल फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी का जे कैपिटल है एंड दिस इज आवर प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज द ताजमहल इज इन आगरा. First we will underline the proper noun. हमने लिखा है द ताजमहल. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये रिमार्केबल हैं, उनके लिए है. जो एवर लास्टिंग ट्रूथ हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? द यूज़ करते हैं. आई टोल्ड यू अर्लियर
सो द ताजमहल है, ये प्रॉपर नाउन है, एंड आगरा इज अगेन अ प्रॉपर नाउन. सो पहले वी विल अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन वर्ड्स आगरा एंड द ताजमहल, एंड देन वी विल रीराइट यूजिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल. दा का टी कैपिटल, ताजमहल ताज का टी एंड महल का एम. सो ऐसा लिखते हुए हमने इनको फिर से लिखा है. द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है. सो स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है. फर्स्ट वी विल अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन वर्ड्स. इन सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. उसके बाद हमें उस जो वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर को हमें कैपिटल लिख देना है. सो दिस वाज योर एक्सरसाइज जी. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज एच. Yes students, this is exercise H. Ask your partner to guess these special names. Write the names on the blanks. Begin each name with the capital letter. इसमें कहा गया है कि अपने पार्टनर को बोलिए कि इनके स्पेशल नेम्स को गेस करें. गेस करें मतलब सोचे, इनके बारे में अंदाज़ा लगाए. राइट द नेम्स ऑन द ब्लैंक्स. जो नेम्स हैं वो ब्लैंक्स में लिखने हैं. हर नेम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है क्योंकि प्रॉपर नाउन होगा वो. सो हमें ये एक्सरसाइज करनी है. लेट अस डिस्कस दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट इज आई एम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक. दैट इज ऑलरेडी डन. मैं संसार की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी हूँ. पीक क्या होता है? चोटी. चोटी क्या होता है? जो माउंटेन का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो चोटी कहलाता है. मैं संसार की हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची पर्वत की चोटी हूँ. दैट इज माउंट एवरेस्ट. उस चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट. उस पर्वत का नाम क्या है जो सबसे ऊंचा है, जो चोटी है? दैट इज माउंट एवरेस्ट. सो नेक्स्ट इज आई एम द कैपिटल ऑफ इंडिया. मैं इंडिया का कैपिटल हूँ. अब यू नो कि इंडिया का कैपिटल क्या है. इंडिया इज अवर कंट्री. इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. नई दिल्ली इंडिया का कैपिटल है. तो ये जो न्यू वर्ड है इसका एन कैपिटल है और दिल्ली का डी कैपिटल है. सो आवर आंसर इज न्यू दिल्ली. नेक्स्ट इज आई एम कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. मुझे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है. फेस्टिवल मतलब त्यौहार, रोशनी मतलब लाइट्स मतलब रोशनी. सो यू नो ऑलरेडी कि रोशनी का त्यौहार कौन सा होता है? दिवाली. सो DIWALI दिवाली. दिवाली का जो डी है जिससे स्टार्ट हो रहा है दिवाली, दैट इज इन कैपिटल. नेक्स्ट इज आई एम द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर. मैं साल का तीसरा महीना हूँ. सो यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. वो एक साल में 12 महीने होते हैं. तो जो मंथ स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट मंथ इज जनवरी, देन सेकेंड इज फरवरी, थर्ड इज मार्च. So the third month of the year is March. MARCH. The spelling of March is this. And March जिस word से start हो रहा है M, that is written in capital. Next is I am the day after Monday. मैं मंडे के बाद का दिन हूँ. मतलब मैं मंडे के बाद आने वाला दिन हूँ. That is Tuesday. We have 7 days in a week. हमारे 7 दिन होते हैं हफ्ते में. तो मंडे के बाद जो आने वाला दिन है दैट इज़ ट्यूसडे. सो ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे. और टी एज यूजुअल जैसा हमें लिखना है कैपिटल लेटर में, टी कैपिटल लेटर में है. सो यू कैन सी स्टूडेंट्स कि जो प्रॉपर नाउन वर्ड्स हैं, जो स्पेशल नेम्स हैं, वो हमेशा कैपिटल में होंगे, चाहे उनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या सेंटेंस के मिडल में आ रहे हैं या एंड में आ रहे हैं. कहीं भी वो यूज़ हों लेकिन वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे. नाउ फॉर एक्सरसाइज आई स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. यस स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज आई, पेज नंबर 22. आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट यू डोंट नीड टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज. आपको ये लिखनी नहीं है एक्सरसाइज, ना तो बुक में ना ही नोटबुक में. सिंपली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे. We will discuss this exercise. This exercise is about rhyming words. Rhyming words के बारे में है एक्सरसाइज. हमने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लास में rhyming वर्ड्स के बारे में पढ़ा है और डिस्कस किया है.
व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट पोएम एंड राइम, उनकी डिफरेंस के बारे में भी जब हम समझ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो राइम होती है उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, बट पोएम में ज़रूरी नहीं कि राइमिंग वर्ड्स हों या राइमिंग स्कीम हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। बट जो राइम होती है उसमें राइमिंग स्कीम होती है। राइमिंग स्कीम क्या होती है कि हमें कुछ वर्ड्स मिलते जुलते, जो एंड में जो 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 लाइन होती है पोएम की, वहाँ वो कुछ वर्ड्स हमें मिलते जुलते साउंड करते हैं। सो नाउ अबाउट राइमिंग वर्ड्स, योर टीचर विल रीड आउट सम वर्ड्स, रिपीट द राइमिंग वर्ड्स। आपकी जो टीचर हैं दैट इज मी, कुछ वर्ड्स को रीड करेंगे, आपको राइमिंग वर्ड्स को रिपीट करना है। व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? आई वांट टू टेल यू अगेन स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, जिनकी जो एंडिंग साउंड है उन वर्ड्स की वो सेम या सिमिलर हो। एंडिंग साउंड, एंडिंग साउंड उन वर्ड्स की अगर सेम या सिमिलर है तो वो राइमिंग वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉट, बोट, कोट। तो आप देखिए ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग है, बट इनकी जो एंडिंग साउंड है ट जिसमें आ रहा है, गॉट, कोट, बोट, तो वो सेम है। सो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। सो वी हैव बीन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, हम देखते हैं कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो राइमिंग वर्ड्स हैं। सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज, आई एम गोइंग टू रीड इट, हाफ, फॉल, सॉल्ट, मॉल्ट। सो आप क्लियरली जान गए होंगे कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका जो एंडिंग, जो वर्ड का एंडिंग है उसका साउंड सेम या सिमिलर होता है। तो हाफ का कहीं से भी सिमिलर नहीं है, ना ही फॉल का इन बाकी वर्ड से सिमिलर है साउंड। सो हमें यहाँ सॉल्ट एंड मॉल्ट, ये दो वर्ड सिमिलर राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं, साउंड वाले, सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स लग रहे हैं। सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स, सॉल्ट एंड मॉल्ट। नेक्स्ट इज बाक, वॉक, पार्क, शेयर। सो अगर हम ट्राई करें तो वॉक और शेयर के साथ कोई वर्ड नहीं है जो सिमिलर साउंड का हो, बट बाक और पार्क सिमिलर साउंड कर रहे हैं, जो उनका एंडिंग है, जो एंडिंग जो साउंड कर रही है वो सिमिलर है, बाक, पार्क। सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज स्लो, काउ, नाउ, कम। हेयर यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट कि आप जान सकते हैं कि स्लो और कम किसी भी बाकी वर्ड्स के साथ उनका एंडिंग साउंड सिमिलर नहीं है। सो सिर्फ काउ एंड नाउ का जो एंडिंग है वो साउंड सिमिलर है। काउ, नाउ, आओ, आओ का जो साउंड आ रहा है दैट इज सिमिलर। सो काउ एंड नाउ आर राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज सैक, पैक, डक, बर्ड। सो अब आप जान गए होंगे कि डक एंड बर्ड इन बाकी वर्ड से नहीं सिमिलर साउंड कर रहे हैं उनका एंडिंग। सो सैक एंड पैक क्या है? राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज रीच, टीच, रिच, रीड। यहाँ आप देख सकते हैं रिच और रीड, इनको जब हमने रीड किया है, पढ़ा है, तो प्रोनाउंस किया है, तो वो उनका जो साउंड है वो नहीं मैच कर रहा है, वो सेम नहीं है किसी भी दूसरे वर्ड की एंडिंग साउंड से। सो अगेन यहाँ रीच एंड टीच, ईच, ये जो साउंड आ रहा है दैट इज राइमिंग वर्ड्स। ये राइमिंग वर्ड्स हैं रीच एंड टीच। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट राइमिंग वर्ड्स, कि हम कुछ भी वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। व्हेन आई आस्क यू टू राइट, एक राइमिंग वर्ड लिखिए, एक वर्ड दूं मैं आपको और आप उसका राइमिंग वर्ड कुछ लिखिए, तो ऐसे ही कुछ भी वर्ड नहीं लिख सकते हैं हम। जो वर्ड हम देंगे उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट राइमिंग वर्ड्स। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सॉल्ट, मॉल्ट, बाक, पाक, काउ, नाउ, सैक, पैक, रीच, टीच। सो अब आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनका एंडिंग साउंड सेम या सिमिलर होता है। नाउ अबाउट एक्सरसाइज जे।
Yes students, we have discussed exercise I. हमने exercise I डिस्कस की है. That was about rhyming words. वो rhyming words के बारे में थी. I told you that you don't need to write down exercise I. आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है. It was for your knowledge or information कि what are rhyming words. हमने कुछ rhyming words उसमें से select किए. Now our next exercise is exercise J. This you have to note down. आपको जो इसका वर्क है वो नोट डाउन करना है. It says work with your partner. Take turns to ask and answer questions about each other. अपने पार्टनर से के साथ काम करिए इस बारे में. एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछिए और आंसर दीजिए. जैसे आपने पूछा है यू मतलब आप. हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो. देन योर पार्टनर विल आंसर आई एम 7 years old. मैं 7 साल का हूँ. बट एट दिस टाइम यू डोंट हैव योर पार्टनर विद यू. आपके पास पार्टनर नहीं है. सो आप क्या कर सकते हैं, यू मे यूज़ दीज क्वेश्चंस और आस्क योर ओन. अपने आप से ये पूछ सकते हैं और अपने आप ही आंसर दे सकते हैं. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स. यू विल आंसर देम वेरी इजीली. सो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. आपका जो फेवरेट कलर क्या है आप अपना बारे में बता सकते हैं. यू कैन राइट योर फेवरेट कलर हेयर. यहाँ पर आप एक इस तरह से लाइन लगाकर लिख सकते हैं. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं या किस सिटी में रहते हैं. यू कैन राइट डाउन हेयर. हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं. हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं, बस से आते हैं, कार से आते हैं या किस तरह से आते हैं, वो आपको लिखना है. So these are very simple questions. You can answer them or you can write the answer of these questions very easily. So this you have to write down. This is your class work. Now students, what we have done in our English class, we have done 4 exercises in our English Communicate book or English Reader book. Now that's all for our English class today. We will meet in our next English class students. Note down the classwork neatly and nicely. Bye bye students.